السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے آپ اور ہم سب کو پیدا فرمایا۔ بیش بہا درود و سلام ہوں ہستی مقدسہ مطہرہ پر کہ جن کا نام اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جن کو اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے شرک، اور اس کے تعلق سے اب جو ہے پچھلی دفعہ میں نے جو ہے دوسری آیت کے اندر جو اللہ رب العزت نے شرک کا ذکر کیا، یعنی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 221 کے اندر اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا تھا اس کا خلاصہ کلام آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تنبیہ کی ہے کہ مومن عورتوں کا نکاح مومن مردوں کے ساتھ کیا جائے، اور مومن مردوں کا نکاح مومن عورتوں کے ساتھ کیا جائے۔ نہ کسی مومنہ عورت کو یہ چاہیے کہ وہ کسی مشرک مرد سے نکاح کرے، اور نہ ہی کسی مومن مرد کو یہ چاہیے کہ وہ کسی مشرکہ عورت سے شادی کرے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک بات اور کہی کہ کے لیے ایک مومنہ عورت بہتر ہے اس مشرکہ عورت سے جو آزاد بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے اور تم کو بھاتی بھی ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کا ایک دم کلیئر کر دیا کہ تمہارے لیے ہر حال میں ایک مومنہ عورت ہی بہتر ہے، بھلے ہی وہ غلام ہو یا کیسی بھی ہو۔ اور اسی طریقے سے مومنین مسلمانوں کو یہ تنبیہ دی اللہ رب العزت نے کہ جب تم اپنی عورتوں کو نکاح میں دو کسی کے، تو سب سے پہلے مومن مردوں کو تلاش کرو، یعنی کہ وہ مومن ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے ایسا حکم کیوں دیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے ایسا حکم کیوں دیا ہے؟ تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو مشرک جو ہوتا ہے نا، اس کا عقیدہ اتنا غلط ہوتا ہے، وہ خود بھی جہنم کے اندر جانے والا ہوتا ہے، اور جو مومن مرد جو مشرک مرد ہوتا ہے یا مشرکہ عورت ہوتی ہے، تو جو اس کے نکاح میں آئے گا، جیسے مشرک مرد کے نکاح میں اگر کوئی عورت آئے گی مومنہ، تو وہ مشرک مرد اس کو بھی مشرک بنا دے گا۔ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے بیان کی، یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم اس لیے نہیں اتارا کہ لوگ اس کو پڑھ کر مردوں کو بخشیں۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ لوگ بہت سے ایسا کرتے ہیں کہ مطلب گھر کے اندر 10-20 لوگوں کو بلا لیے، قرآن خوانی کرا دیے اور اس کو بخشوا دیے۔ تو اللہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن جو ہے زندوں کے لیے ہیں۔ جو انسان یہاں پر اپنی زندگی کے اندر اس قرآن کے ساتھ شرکتے ہوئے فوت ہوا، اس کو پڑھتے ہوئے فوت ہوا، اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے فوت ہوا، تو یہ قرآن اس کے لیے روشنی ہے، نور ہے۔ لیکن جو انسان اس دنیا سے چلا گیا، اس کے سارے کے سارے جو ہے رشتے
इस दुनिया से मुनक़ते हो गए, अब उसके आमाल के अंदर जो है कोई भी नेकी जुड़ने वाली नहीं है, इल्ला ये कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान के मरने के बाद उसके नामाए अमाल के अंदर जुड़ती रहेंगी। नंबर 1, ऐसा अमल, सवाब जारिया का वो अमल जो उसने बाद में छोड़ा है और उसके बाद में लोग उसको कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी इंसान ने किसी बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दिया या आलिम बना दिया, तो जब तक वो इल्म का सिलसिला चलता रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मरने वाले के नामे आमाल के अंदर उस नेकी को दर्ज किया जाता रहेगा। और ऐसे ही बुरे काम का अमल, किसी इंसान ने अगर कोई ऐसा बुरा किया दुनिया के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में बुरा था और मग़ज़ूब था, यानी कि उस पर लानत थी उस अमल पे, तो जब तक वो बुरा काम इस दुनिया के अंदर चलता रहेगा, उस इंसान के नामाए आमाल के अंदर बुराई लिखी जाती रहेगी। नंबर 2, ऐसा पैसा किसी इंसान ने नेक रास्ते में खर्च किया है और फिर उसके मरने के बाद भी लोग उस चीज़ से फ़ैज़ उठाते हैं और उस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं, तो उस नेकी का भी अज्र जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को मरने के बाद क़यामत तक देता रहेगा। नंबर 3, वलद सालिहुन, यानी कि वो औलाद, वो नेक और सालेह औलाद जो इस दुनिया के अंदर अपने वालिदैन के फ़ौत होने के बाद में उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहे, तो ये भी जो है उनके नामाए अमाल के अंदर जो है वो चीज़ दर्ज होती रहेगी। उसके माँ सिवा इंसान अपनी मनमर्ज़ी के मुताबिक कोई भी अगर अमल करता है और वो ये समझता है कि इसका सवाब जो है हमारे वालिदैन को पहुँचेगा, तो उसका सवाब वालिदैन को नहीं पहुँचता, इल्ला कि ये 3 चीज़ें ही ऐसी हैं कि जिनका सवाब मरने वाले को पहुँच सकता है। तो हमें ये चाहिए कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने वालिदैन के लिए नमाज के बाद में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जो है जन्नतुल फ़िरदौस के अंदर आला मकाम अता फ़रमाए। तो यहाँ पर जो शिर्क के ताल्लुक़ से दुरूस चल रहे हैं, तो मेरे भाई आप ये ना समझें कि शिर्क जो है मामूली गुनाह नहीं है। आजकल लोगों ने शिर्क को एक मामूली गुनाह समझा है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में ये शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर शिर्क के ताल्लुक़ से जो है इरशाद फरमाता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज़्यादा अगर किसी गुनाह का जो है मतलब जुर्म रखा है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर जो है मतलब शिर्क के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया है। और इसके बाद में मैं आपको क्या बताऊं कि लोग जो है आज तक ये नहीं समझते कि शिर्क है क्या। मैं ये कहता हूँ आप लोगों से, जो तुम्हारे उलमा और जो तुम्हारे मौलवी जो मस्जिदों के अंदर बैठे हुए हैं, आप उनसे जाके सवाल करें कि हज़रत ये शिर्क जो है क्या है, शिर्क और बिदत क्या है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिर्क को भी माफ़ नहीं करना है, और बिदत वो अमल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना साबित ना हो। वो अमल जो है दीन के अंदर कोई ऐसा अमल मतलब ईजाद किया जाए जो अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित नहीं है, वो बिदत है। चाहे भले ही वो अमल कितना ही खूबसूरत की ना हो, कितना ही बड़े आलिम या फतवा देने वाले के ज़रिए वो अमल जो है मुसलमानों के अंदर राइज हो, लेकिन वो अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ काबिल कबूल नहीं है। आप ये समझ लें। और आज हमारे उलमाओं की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस गुनाह के ताल्लुक़ से सबसे ज़्यादा इस उम्मत को डराया, वो शिर्क है। क्योंकि मेरे भाई शिर्क एक ऐसा कभी गुनाह है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और उसके माँ सिवा जो गुनाह इंसान करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो उनको माफ़ कर दे या उनकी सज़ा देने के बाद में उनको जन्नत के अंदर दाखिल करे, लेकिन शिर्क को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब शिर्क का तज़किरा आता है तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि मूर्तियों को पूजना, उनके सामने सजदे करना, उनके सामने न्यास चढ़ाना, उनके सामने मिठाई चढ़ाना, ये शिर्क है। मेरे भाई सिर्फ यही शिर्क नहीं है। आपको मैं बता दूं कि
क्या मुशरिकीन मक्का जो थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा गया, तो उस वक्त में मुशरिकीन मक्का जो थे, क्या वो अल्लाह को नहीं मानते थे? अल्लाह को मानते थे मेरे भाई, अल्लाह को मानते थे। लेकिन अल्लाह के अलावा उन लोगों ने दूसरों को भी जो है अल्लाह का शरीक ठहरा रखा था। और ये वो लोग ये कहते थे, जैसे जिस तरीके से आज लोग कहते हैं ना कि भाई हम अपनी बात जो है इन बुजुर्गान दीन के ज़रिए से अल्लाह तक पहुंचाते हैं। तो मेरे भाई अल्लाह ऐसी बात ना कहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एनी टाइम और एनी हर इंसान की हर बात से बाखबर है। और पहली बात यह है कि हर इंसान के साथ में किरामन कातिबीन हैं, वो हर इंसान का रजिस्टर तैयार कर रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की किसी भी बात से जो है बेखबर नहीं है, बेखबर नहीं, बाखबर है वो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और तुम्हारी सारी बातों को जानता है, चाहे हम वो खुले में करें या चाहे वो हम किसी कमरे के अंदर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सब अमाल से बाखबर है। तो भाई सबसे ज़रूरी ये है कि हर इंसान को चाहिए कि वो शिर्क जैसी गलाज़त से बचे और अपने अक़ीदे को साफ़ और सुथरा करे। और भाई कहने का मतलब ये है कि जो बुज़ुर्गान दीन इस दुनिया से चले गए, उनका अजर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। हाँ, उनका अजर हम नहीं दे सकते। तो हमें सबसे पहले अपने अक़ीदे पर तवज्जो देनी चाहिए और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ए बारी ला हमें शिर्क से महफूज रखे और हमें और हमारे भाइयों और बहनों को जो है इसके बारे में इल्म हासिल करने की कोशिश करें। ये कुरान जो है मेरे भाई इसलिए नाज़िल नहीं हुआ कि हम इसको पढ़ पढ़ के फूंकें। दम कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, दम करें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन इस कुरान को पढ़ के अपने मुर्दों के लिए बख्शना, सिर्फ यही तक कुरान को महदूद कर देना, बस यहीं तक कुरान को महदूद कर देना, ये इसका मकसद नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कम बेश पूरे कुरान के अंदर 3 से लेकर 4 मरतबा कहा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस ज़िक्र को आसान किया है, हमने इस ज़िक्र को आसान किया है, तो कोई है हिदायत हासिल करने वाला। आज अगर किसी इंसान के सामने कहा जाए कि भाई कुरान को पढ़ लो और इसको समझ लो और इसका इल्म हासिल कर लो, तो वो कहता है भाई कि कुरान जो है बड़ी टफ़ किताब है, कुरान जो है बड़ी टफ़ किताब है और इसको हम समझ नहीं सकते। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस कुरान को नाजिल करने वाला, जिस कुरान को नाजिल करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कहता हो इसके बारे में कि ये हमने आसान किया है, तो कोई है हिदायत हासिल करने वाला। लेकिन इंसान, और आज के तो भाई अल्लामा वल हफीज़, आज के मौलवियों को मैं कहते हुए देखा कि भाई कुरान तुम्हारे बस की बात नहीं है, कुरान तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, जब तक तुम 15 उलूम नहीं सीख जाते तुम्हारी समझ में कुरान नहीं आएगा। अरे मुझे कम से कम ये तो बताओ, ये कुरान अरब के वो बद्दू जो ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर गए, जो ना किसी कॉलेज के अंदर गए, तो उनकी समझ में ये कुरान करीम कैसे आया? अब आप मुझे ये बताइए, क्या उस वक्त के अंदर कोई यूनिवर्सिटी मौजूद थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में? भाई हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त वो जो है सीखते थे और उस पर अमल करते थे। भाई इतना फ़र्क है कि आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, लेकिन एक किताबी शक्ल के अंदर उनकी तालीमात पूरी की पूरी अल्लाह के फजल करम उसकी मेहरबानी से आज हमारे सामने मौजूद हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम इस कुरान को जितना भी पढ़ें, चाहे हम एक आयत पढ़ें या एक सूरत पढ़ें, लेकिन कुरान को समझकर पढ़ें, रटे हुए तोते की तरह इसको ना पढ़ें। हम देखते हैं कि सुबह के अंदर भाई हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार और तमाम लोग जो हैं सुबह सुबह उठ के पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें पेपर पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबसे पहले उस कलाम को पढ़ें, उस कुरान को पढ़ें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी आखिरत की कामयाबी के लिए नाजिल किया है। और ये कुरान जो है मामूली किताब नहीं। आज मुसलमान इस दुनिया के अंदर तबाह बर्बाद क्यों हैं? वो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों ने इस कुरान करीम को छोड़ दिया है और इस कुरान से जो रिश्ता जो है दूर कर दिया है। मैं आपको बताऊं, आज हमारी रूह क्यों बेचैन है, आज हमारे सामने मसाइब क्यों हैं, आज हम बेचैन क्यों हैं? क्योंकि हमारी रूह की जो ग़िज़ा है, जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
ہمارے اس جسم کو تناور اور تندرست رکھنے کے لیے جتنی بھی چیزیں پیدا کی وہ سب کی سب سوائل یعنی مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہماری روح کو تر و تازہ اور تندرست اور توانا رکھنے کے لیے جس چیز کا جو ہے انتظام کیا وہ جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ یہ قرآن کریم ہے کہ اس کتاب کے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے جب مشرکین مکہ نے یہ بات کہی کہ مطلب جو ہے روح کیا ہے، روح کے تعلق سے پوچھا، تو اللہ رب العزت نے، کیونکہ قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ میں تو آپ ایک چیز دیکھیں گے، یہ قرآن جو ہے نا سوال و جواب کی شکل میں نازل ہوا ہے۔ جس طریقے سے مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے اسی کے ضمن میں اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا تھا۔ تو مشرکین مکہ نے پوچھا روح کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا من امر ربنا، کہ روح جو ہے اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ رب کا ایک حکم ہے، روح جو ہے وہ ایک رب کا حکم ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ حکم جو ہے اوپر سے نازل ہوا ہے اور قرآن بھی اوپر سے نازل ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں جو جسم مٹی کے اندر دب کے سڑنے اور گلنے والا ہے نا اس کی غذا بھی ایسی ہی ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی فروٹ ہیں آپ ان کو کتنا ہی سیو کر دیں، فریج کے اندر سیو کر دیں، کہیں پر بھی سیو کر دیں، ایک وقت آئے گا وہ سڑ جائے گا، وہ خراب ہوگا، وہ ڈسٹ بن میں چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کا جسم بھی ہے، چاہے کوئی انسان کالا ہو یا گورا ہو، اجمی ہو یا عربی ہو، لیکن اللہ رب العزت نے سب کے جسموں کو اس مٹی پہ حلال کر دیا ہے، ماں سوائے انبیاء علیہم السلام کے، کہ ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ جس کے جسم کو محفوظ کرنا چاہے اس کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی ہے، اور اس کے ماں سوا سب لوگوں کے جسموں کو مٹی کھا جاتی ہے۔ اسی طریقے سے روح جو ہے باقی رہنے والی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس روح کی توانائی کے لیے، تندرستی کے لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو نازل کیا اور اس کے ذریعے سے ہماری روح کو تر و تازہ کیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، چاہیں 24 گھنٹے کے اندر آپ قرآن کا ایک رکوع پڑھیں یا چاہیں ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھیں، تو ضرورت اس بات کی ہے اس کو سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ میرے بھائی زندگی مختصر ہے اور یہ دنیا کا جو معاملہ ہے نا یہ عنقریب جو ہے ختم ہونے والا ہے، قیامت بھی آنی ہے اور سب کو جا کے اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور اسی کلمات کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان